Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, level 5. I'm Asiya Sajad, your teacher of English, and this is going to be your lecture number 7. This is related to grammar. As you can see the page of the summer task of 13th May 2020, and it was Wednesday when this page was to be done in your summer task, and it is related to past continuous tense. In lecture number 3, I have introduced you past continuous tense. Past continuous tense is related to past, and the work when is done continuously, then we write it with the help of past continuous tense. So the same page is in front of you, you can see it very well. This is the same page that we have done while doing our introduction. So you can see example. बच्चा सो रहा था. The baby was sleeping. After that you can see formula like how to write a sentence. We will write the subject, the baby, in the very beginning. Then we will write a helping verb was, or it can be were also if the subject is plural. And then we are going to write first form plus ing, that is called as present participle, and the verb becomes participle after using ing with first form of verb. This is what the formula of past continuous is, like using of was were and using of ing with first form of verb. This is the whole formula, okay? This is not difficult at all. Then we had discussed helping verbs. You can see that was and were are the helping verbs. Was is used for singular subject like he, she, it or noun, and were is used for plural subject like they, we, you, nouns, and verb is used in participle form. First form of verb plus ing, that is called as present participle. This is what the introduction was. Then on the next page of 14th May, we had done some examples. There were two examples. One was given as HW or practice, and one was sold. The sold example is दुश्मन दरिया अबूर कर रहा था. According to the rule, was is going to be used because enemy is singular and it is a subject, and then we will use ing with first form of verb, and river is object, the enemy is subject. After that, after completing a simple sentence like दुश्मन दरिया अबूर कर रहा था, the enemy was crossing the river, we made a negative और मनफी जुमला, नेगेटिव सेंटेंस जिसको मनफी जुमला भी कहते हैं. दुश्मन दरिया अबूर नहीं कर रहा था. यहाँ आप देख रहे हो, यू कैन सी वेरी क्लियर दैट ओनली नॉट इज एडिड, नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. द एनिमी वाज नॉट क्रॉसिंग द रिवर. सवालिया, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. क्या दुश्मन दरिया अबूर कर रहा था? यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में ले आना है. लेवल 5 आप लोग को और लेवल 6 को सेम टेंसेस कराए जा रहे हैं, ठीक है? ये दोनों के लिए सेम है. अब आपको ये देखना है कि अभी तक जो आपने पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस किया है, उसमें सवालिया जुमला में हमेशा शुरू में आपने हेल्पिंग वर्ब को ही नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ कर रहे हो. हर टेंस का यही रूल है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, इसको ज़रूरी नहीं है कि इसका हर हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में लग सकता है, ऐसा नहीं है. हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है, और वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करना होता है इन द बिगिनिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वाज द एनिमी क्रॉसिंग द रिवर कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूस में, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि वाज ही इस्तेमाल किया गया था इन द बिगिनिंग. फिर उसके बाद मनफी सवालिया जुमला आ जाता है. इसकी उर्दू नहीं लिखी हुई है मैंने, लेकिन बहरहाल उर्दू इस तरह बनेगी, क्या दुश्मन दरिया अबूर नहीं कर रहा था. वाज द एनिमी नॉट क्रॉसिंग द रिवर. दो चीज़ें हम मार्क कर सकते हैं इसमें इंटेरोगेटिव बनाते हुए. एक तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, और दूसरा ये कि क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करते हैं. तो ये आपने जहन में रखना है. आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिस ही के बारे में है. इसकी प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको जुमला दिया था वह सलमान क्रिकेट खेल रहा था. मैंने इसका सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया था, ये आप देख रहे हो इस पेज पे. सलमान वाज प्लेइंग क्रिकेट सिंपली, लेकिन मनफी सवालिया और मनफी सवालिया को आपके लिए छोड़ा था. अब ज़रा हम इसको ज़ुबानी देख लेते हैं एक दफ़ा.
आप इसको सुनिए और इसको लिखें। सलमान क्रिकेट खेल नहीं रहा था या सलमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था कि उर्दू मनफी जुमला कहलाएगी, और अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सिर्फ सलमान वाज प्लेइंग क्रिकेट में वाज के बाद नॉट ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा सलमान वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सवालिया बनाते हुए क्या को शुरू में लिखना है, क्या सलमान क्रिकेट खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क को सवालिया निशान को एंड पे लगाना है, और सेंटेंस को शुरू कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये जो वाज आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसको आप शुरू में लिख देंगे, वाज सलमान प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मनफिया सवालिया बनाते हुए इसको क्या करेंगे हम, क्या सलमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था, और इसकी ट्रांसलेशन करते हुए वही वाज हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे, वाज सलमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है इस तरह हो सकती है। उसके बाद बेटा इसी लेक्चर में आपको ये भी देखना है कि मिक्स सेंटेंसेस को कैसे पहचानना है और किस तरह से उनकी ट्रांसलेशन करनी है। मिक्स सेंटेंसेस को सारे टेंसेस में से दिया गया है, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नज़र आएगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट भी, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी और प्रेजेंट डेफिनिट में। टोटल 4 जुमले, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। समर टास्क 16 मई के समर टास्क में आपको दिया गया था। बूंदाबांदी हो रही है पहला जुमला है, ठीक है। अब इसके एंड पे रही है इस्तेमाल हुआ है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि वो काम जो अभी हो रहा हो। इट इज़ ड्रिजलिंग, जो ड्रिजलिंग की सेंस है वो हल्की हल्की बारिश के लिए, ये बूंदाबांदी के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप उर्दू में देख रहे हो कि मैंने बूंदाबांदी के नीचे हल्की हल्की बारिश भी लिखा है और लिखा है कि इट इज़ ड्रिजलिंग, इसका मतलब है हल्की हल्की बारिश हो रही है। शेर गाय उठा कर ले गया, पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये काम शेर ने कर लिया है, ठीक है, इन द पास्ट, शुरू मतलब हो चुका है ये काम। तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। द लाइन शेर है, कैरिड सेकंड फॉर्म है कैरी की, अवे द काउ गाय को उठा के ले गया। कैरिड अवे का मतलब ले गया, इन द सेंस ऑफ सेकंड फॉर्म, कैरी नहीं यूज़ हुआ, कैरिड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो वर्ब हैं, जो रेगुलर वर्ब हैं, उसमें ईडी लगाकर हम सेकंड फॉर्म बना लेते हैं। ये अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर चुके हैं रूल, ठीक है। मैं किताब से नकल नहीं कर रहा था, जहाँ भी था आएगा बेटा वो पास्ट होगा, और रहा की सेंस आ जाए तो कॉन्टीन्यूस होगा, तो ये मिला के बन गया पास्ट कॉन्टीन्यूस। आई वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम नोटबुक, ठीक है। वो गुनाह पर नहीं पछताता है, मतलब शर्मिंदा होता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट यानी कि ये रेगुलर या यूजुअल टेंस है जिसको प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल टेंस कहा जाता है। ही डज़ नॉट रिपेंट ऑन सिन, रिपेंट फर्स्ट फॉर्म है, डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ऑन सिन गुनाह पर, ही हमारा सब्जेक्ट है। ही डज़ नॉट रिपेंट ऑन सिन, वो गुनाह पर नहीं पछताता है। तो बेटा ये आपको याद करना है आपके मिड टर्म के लिए, मिक्स सेंटेंसेस, और इसके अलावा प्रैक्टिस के 2 जुमले, उसके अलावा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो प्रैक्टिस में होना चाहिए आपके, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें जब पेपर में आए। आई होप के बेटा आप इसको ज़रूर रिपीट करेंगे, इसको समझेंगे, और अगर लेक्चर सुनेंगे तो ज़रूर अपने नोट्स को निकाल के सुनें, ठीक है, तो ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। थैंक यू बेटा।